Is my screen is visible, students? Screen is visible. Yes, sir. Okay, so as we have seen till now, like how to write a number in a file and then how to retrieve those numbers from the file, right? How to write and read from the file. Is that clear? Yes. Today we will write one structure. Structure means what? Collection of dissimilar data type. जैसे मान लो एक स्टूडेंट्स का मैं सीधा छोटा सा डेटा लिखूंगा, उसका रोल नंबर और उसका नेम, बस इतना मुझे कहाँ लिखना है? फाइल में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जस्ट हैव टू राइट स्टूडेंट्स नेम एंड number, roll number in a file. So for that I have to have first and foremost line, आप सबको पता चल गया है, is hash include करना पड़ रहा है. Yes, the reason behind this वो file structure आ रहा है उसके लिए. And then after this I can declare my struct student, और फिर बाद में मैंने बोला कि integer roll number मैंने बोला, right? और कैरेक्टर नेम कितना बड़ा? बस 20 तक बहुत है, बस इससे ज्यादा आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी मोर मेंबर. आपको चाहिए तो यू कैन इंक्रीज. ये मैंने ले लिया. आफ्टर दिस आई एम स्टार्टिंग विथ माई मेन void main I'm starting with my main program, and in this main I'll have to open one file, star fp, file fp, and I'll have to open that file for what purpose? For writing purpose. So I will go ahead with fp is equal to fopen which file? I may say student or dat. The purpose here is to write. I'm writing something in this file. But before you write, just check whether you have opened this file. There was no problem, technical problem. So that needs to be checked. Okay. It should not happen file open नहीं और हम यूजर को बोलते हैं give me the roll number and other things. So printf can't open file. ठीक है, ये हम बता देंगे. अगर नहीं ओपन होएगा तो I'll tell you this and I'll go out of the program. But if the file can be opened, okay, if you can open the file, then you wanted to write something into the file. So you want to write one structure, I mean one student detail, two student detail, three student detail. I will leave it to you. तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा एक से ज्यादा स्टूडेंट डिटेल लिखते हैं. तो कैरेक्टर आंसर मैं बार बार उसको पूछूंगा, बाबा और ऐड करना है क्या? इफ ही सेज यस, वी विल ऐड दैट. ओके, सो वाइल या डू करते हैं. डू व्हाट? printf एंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड व्हाट? क्या चाहिए आपको? एंड नेम, राइट? Student roll number and name. But before you should ask for this roll number and name, have you declared any structure variable? No, sir, I have not declared. So I will say struct student s is my variable, structure variable. So I said enter student roll number and name. How will you read them? I will be reading them using structure variable. Roll number is integer, name is string. So roll number, how will you read? E dot roll underscore number. ये मैंने लिखा था वहां पे वेरिएबल नेम स्ट्रक्चर में ऊपर देखो. So E dot roll number, comma E dot name, because name is a string, it does not require ampersand. So I'm reading roll number and name. Now what is to be done with this roll number and name, students? This needs to be inserted into the file. Very important function I'm calling now.
I'm calling, see, we have used printf for writing on the screen. I have used fprintf to write on a file, right? Now, I am calling function called fwrite. fwrite. fwrite, please write. What to write? Sir, वो जो structure है ना, like I am having one structure variable s. What is the total number of bytes s is going to have? 22 bytes, right? कितना बाइट मेमोरी है उसको एस को स्टूडेंट्स 22 क्यों 22 क्योंकि 2 बाइट रोल नंबर का और 20 बाइट्स नेम का राइट ना स्टूडेंट्स तो मैं स्ट्रक्चर को बोलता हूं देखो भाई मेरा एस का जो 22 किलोमीटर का एरिया है कहां से स्टार्ट होता है दैट इज व्हाट इज द इनिशियल एड्रेस तो इनिशियल एड्रेस ऑफ एस एफ राइट विल फाइंड आउट भाई ये एस कहां से स्टार्ट हुआ है एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड दिस एफ राइट प्लीज यार आप एक काम करो इसका साइज भी पता कर लो किसका एस का तो स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है साइज अगर 22 है तो 1000 कहां पे एंड अप हो जाएगा स्टार्टिंग इज 1000 साइज इज 22 सो वेयर इट गेट एंडेड अप स्टूडेंट्स हेलो कहां पे एंड होएगा जैसे मान लो कोई चीज 1000 पे स्टार्ट हो रही 22 स्टेप्स आगे जाना है तो व्हाट इज योर नंबर अरे यार 21 पे एंड होएगा सो वो 22 बाइट्स आई विल हैव टू राइट वन एट ए टाइम मतलब पूरा 22 बाइट्स का जो ब्लॉक है ब्लॉक ऑफ मेमोरी शुड बी रिटन इनटू वेयर इन एफपी देखो एफ राइट को मैंने कैसे समझाया कि मैंने बोला है एफ राइट you have to start from that initial address find out the size of that structure and that entire structure not roll number separately name separately that 22 bytes you have to take it from the buffer where the user has entered and then entire 22 bytes you have to write in fp right so fwrite लिख देगा वहां पे जाके right students fwrite will write this detail into fp right students is that clear तो चलो मैं बोलो सर चल जाएगा आप सिंगल में भी लिखोगे तो भी चल जाएगा ठीक है तो मैं अभी अब मैंने एक स्ट्रक्चर लिख दिया है कहां पे फाइल में अब आपको दूसरा लिखना है नहीं लिखना है तो यूजर से क्वेश्चन तो डाल दो बाबा राइट वांट टू ऐड अनदर क्या अनदर स्टूडेंट डिटेल और दूसरे स्टूडेंट का डिटेल ऐड करना है क्या यू आस्क द यूजर आंसर यू टेक इन वाई और एन में ले लो राइट आंसर मैंने पूछा भाई एक तो मैंने ऐड कर दिया और बिफोर दैट डिटेल्स कम इसको भी यहाँ पे तब तक फ्लैश करके रखो एफ फ्लैश किया std in and then I am reading my scanf आपका आंसर मैं रीड कर रहा हूं %c एम्परसैंड आंसर राइट अगर अब ये आंसर आपका while this answer is y हो और capital Y small y any y is welcome either small y और capital Y is accepted तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स अगर आप फिर से आप यस बोलोगे तो हम फिर से आपका दूसरा रिकॉर्ड तीसरा रिकॉर्ड सब ऐड करते जाएंगे राइट एंड जब सब कुछ ऐड हो गया स्टूडेंट्स तो मैं काम कर देता हूं कि मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं विच फाइल fp is got closed now fp is closed so shall I close this program as well yes we will close this program okay program got closed now students is that clear yeah नहीं यहां अगर यूजर वाई प्रेस करेगा तो ही आगे कंटिन्यू होएगा
वाई नहीं किया मतलब आपने फिर दूसरा कुछ किया है, राइट? हाँ, तो अपने आप बाहर हो जाएगा, राइट? इफ यू आर प्रेसिंग वाई देन ओनली इट विल गो टू डू, तब कुछ करेगा, डू करेगा। अदरवाइज आपने वाई नहीं किया है तो क्या है, क्या किया है फिर आपने? That's it. हाँ, मतलब दूसरा कुछ भी किया तो लूप के अंदर चलेगा ही नहीं, वापस रिपीट नहीं करेगा, राइट? यस, यहाँ पे जरा कर्ली ब्रैकेट है because we are adding so many statements. Look at this. Is that clear, students? तो जरा प्रोग्राम के ऊपर गो थ्रू कर लो। एक स्ट्रक्चर है, फिर फाइल का पॉइंटर है, फाइल जो फाइल को लोकेट करेगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, आंसर है, फाइल ओपन किया मैंने और तुरंत स्टूडेंट्स को बोला कि डिटेल दो बाबा, एंटर योर रोल नंबर एंड नेम and the S, and when I got that, immediately I called my fwrite and I've given the instruction, fwrite please write all these bytes in FP, and then I'm asking the question whether you want to add any more details. If I will get, definitely I'll add them in my file again in FP. If not, I'm closing my file. So please save this program, save as, what is this file name? क्या है तुम्हारा फाइल नेम? fwrite.c. ई कहां से आ गया? एस है बाबा, s dot name, right? It is not e dot name, it is s dot name, because variable is what? S, right? Student, even this also I have used s only. So एक और कहीं मिसिंग है, ओ ब्रैकेट का मिसिंग है, so I will have this इससे कुछ प्रॉब्लम है? यस, इधर भी प्रॉब्लम है। नाउ नो प्रॉब्लम। तो अब मेरा कंपाइल हो गया, मतलब ओबीजे हो गया। अब मैं रन कर रहा हूं। रोल नंबर 101, स्टूडेंट नेम is कैफ। Add another detail, yes, roll number 102, student name Kajol. Add another, yes, roll number 103, student name कौन था? स्नेहा। रोल नंबर 104, स्टूडेंट नेम कौन है? बोलो भाई, सिक्का। हाँ, यस। रोल नंबर 105, स्टूडेंट विष्णु। विष्णु, विष्णु अच्छा बच्चा है, विष्णु। रोल नंबर 106, अभी हर्षल को भी दे ही देते हैं यहाँ पे एंट्री। हर्षल, Harshal. Okay. No, I don't want to add any more details. So I have added all the detail, students. Where this detail went, सब किधर गए लोग? Students, it is there inside the file, right? Yes, sir. Now what is to be done? Yes. What is to be done now? क्या करना चाहिए अब मुझे? रिट्रीव करना चाहिए। तो चलो मैं प्रोग्राम को चेंज करता हूं। अब मेरा दूसरा प्रोग्राम आएगा fread.c। अब मैं रीड करने जा रहा हूं। टू रीड दैट फाइल, सी टू इट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे ये स्टोर किया है, व्हाट वाज योर स्ट्रक्चर, हाउ यू हैव स्टोर्ड? सर मैंने पहले रो नंबर लिखा था, बाद में नेम लिखा था। यू कैन नॉट चेंज द पैटर्न, यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रक्चर हियर, स्टूडेंट। अगर आपने नेम लिखा है, बाद में रोल नंबर लिखा है, तो रीडिंग भी वैसे ही होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? Structure of writing and reading should match, then only you will be able to read the structure. जैसे मान लो कोई टेबल है, जब डीबीएमएस पढ़ते हैं हम लोग, you don't have डीबीएमएस right now, right स्टूडेंट? नहीं, नॉट इट। तो जैसे हम लिखते हैं जो भी कॉलम, जैसे मान लो एक स्टूडेंट्स का पहले रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, डिवीजन है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, तो जब रीड करेंगे तो वही सीरियल में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले रोल नंबर, नेम, फिर ईमेल आईडी, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर क्लास, देन दिस विल गेट कंफ्यूज्ड। द वे यू हैव रिटन ऑर्डर, सेम वे यू हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन, राइट स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? मतलब जो ऑर्डर में तुमने वहां डेटा पास ऑन किया है, लिखा है, वही ऑर्डर में आपको रिट्रीव करना है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से हियर। So I will be reading. So now reading concept will go into R. I want to open a file for what purpose? Same file for reading purpose, right, student? Same file for what purpose? For reading purpose.
So let us check whether you have opened the file or not. But very important is I'll have to go with मेरा नेक्स्ट लाइन आ रहा है भाई, आप फाइल को कब तक रीड करोगे? जो फाइल में आपने इंफॉर्मेशन स्टोर किया है कब तक रीड करोगे सर? जब तक उसमें इंफॉर्मेशन होगा। तो देखो ट्रू होना चाहिए, तो आई एम गोइंग टू रीड इन द व्हाइल लूप इटसेल्फ। एफ रीड एक काम करो सर, आप स्टार्टिंग एड्रेस से स्टार्ट करो, हर एक स्ट्रक्चर का साइज कितना है उतना उतना बाइट्स फेच करो। लाइक यहाँ पे हमने 5-6 स्ट्रक्चर स्टोर किए हैं, बट एवरी स्ट्रक्चर का साइज कितना है? 22 बाइट्स। तो आप 22 बाइट्स को रीड करो एक साथ, मतलब 22 बाइट्स का एक ब्लॉक बनाओ, उतना रीड करो, राइट? और फिर मैं बात करता हूँ क्या करना है। रीड करो, कहाँ से रीड करना है सर? एफपी से रीड करना है। ओके सर, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। तो वो जब रीड करेगा स्टूडेंट्स, जब रीड करेगा तो आई कैन गो फॉर द प्रिंट। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ प्लीज कम एंड हेल्प मी। सर क्या करना है सर? पहले %d और बाद में %s हमने किया और ये /n किया मैंने। तो मैंने रीड किया है s डॉट रोल नंबर। रोल नंबर कैसा था? छोटा था कि बड़ा था स्टूडेंट्स? छोटा। बड़ा। नहीं, छोटा, स्मॉल केस। आई वाज जस्ट चेकिंग द केस। रोल नंबर, ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा आप छोटा बड़ा होएगा तो चेंज हो जाएगा। देन सेकेंड वाज s डॉट नेम। ये दो लोगों को आप, s ने जो अभी अभी रीड किया है पहला स्ट्रक्चर, उसमें से s रोल नंबर और s नेम को आप डिस्प्ले करो। बोलेंगे सर अभी कर रहे हैं, 2 मिनट रुको आप, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, आई विल डू द नीडफुल। सो वाइल यानी जब तक रिकॉर्ड मिलेंगे तब तक वो प्रिंटफ को साथ में रखेगा और डिस्प्ले करता चला जाएगा। बस हो गया, प्रोग्राम खत्म सर, इतना ही जी। वाइल एफ रीड, मतलब एफ रीड जब रीड कर रहा है और वहां उसको बाइट्स मिल रहा है, दैट इज समथिंग इज ट्रू। It is retrieving, it is every time it is getting something from the file. So till it is getting something from the file, 22 bytes के blocks मिल रहे हैं, it will keep on printing with the help of printf. The moment stops getting next 22 bytes, that you have to assume that is the end of the file, student. So it will stop reading. Okay. So let us save this and compile this, success, and run this. Oh, देखो कुछ दिखाई पड़ा तुमको स्टूडेंट्स? क्या दिखाई पड़ा? यस, जो आपने एंटर किया था वो आपके सामने आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया सर। कहाँ था ये सब सर? इट वाज देयर इन द फाइल। लुक एट दिस, हाउ यू गॉट इट फ्रॉम द फाइल, राइट? तो ये तो अभी 2 का डिटेल है, मतलब मे बी रोल नंबर एंड नेम। अगर मान लो ऐसे ही तुम कोई स्टूडेंट्स का और ज्यादा डिटेल एंटर करो, मे बी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, वो भी हम रिट्रीव कर सकते हैं, राइट? चलो अब 2 का सीखा है तो थोड़ा और बढ़ाओ इसको। तो हम एफ राइट में जाते हैं पहले। एफ राइट में, एफ राइट किधर गया? एफ राइट किधर है? इधर है। चलो आपको क्या बढ़ाना है अभी? क्या चाहिए आपको? स्टूडेंट्स का नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग इंटीजर, CN स्टैंड्स फॉर कॉन्टैक्ट नंबर। और भी बढ़ाना है कुछ? हाँ स्टूडेंट्स, बस इतना बहुत? क्लास बढ़ाना, क्लास चाहिए? तो क्लास तो सबका फिक्स है यार, पता है कि सबका क्लास तो FY ही है ना, उसको क्या, ठीक है। चलो एक मैंने और ऐड किया बस, और कुछ नहीं, एक मैंने और बढ़ा दिया। तो नाउ इंस्टेड ऑफ 22 बाइट्स, नाउ इट इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ 26 बाइट्स। और जब आपने बढ़ाया है तो यहाँ पे रीडिंग में उसको आपको रीड करना पड़ेगा। सो %LD हो गया। और जब रीड करेंगे तो यू हैव टू हैव अनदर वेरिएबल कॉल्ड एम्परसैंड s.cn। CN स्टैंड्स फॉर कॉन्टैक्ट नंबर। सो नाउ अब एफ राइट क्या करेगा? 22 बाइट्स नहीं लिखेगा, वो 26 बाइट्स लिखेगा, राइट स्टूडेंट्स? आप समझ रहे हो कि नहीं? बिकॉज यू सेट साइज ऑफ स्ट्रक्चर, so now the size of structure is got changed now it is not 22, it has become 26. Is that clear students? Yes.
तो अगर आपको और मेंबर बढ़ाने हैं तो आप और बढ़ाओगे, बस वहां पे चेंजेस करना है, रीडिंग करना पड़ेगा, उसको स्कैन ऐप में आके चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर एडिंग मोर मेंबर्स, दैट्स ऑल। तो चलो हम इसको कंपाइल कर देते हैं। ये एरर कहाँ से आ रहा है, फिर से प्रॉब्लम सेव नहीं किया था मैंने। s.s. इसको पहले मैं ठीक कर देता हूँ, and even this needs to be changed, and this I will change। सेव करो पहले इसको, रन कर रहे हैं हम लोग। तो अब पूछ रहे हैं रोल नंबर फिर से 101 कौन है भाई, कैफ 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 नंबर कुछ भी मैं डाल देता हूं यहाँ पे नंबर, ठीक है। दूसरा यू वांट टू ऐड 102 इफत नंबर, थर्ड 103 ऐश्वर्या, राइट, ऐश्वर्या कुछ भी नंबर में, हाँ। नेक्स्ट 104 और क्या नाम देना है स्टूडेंट्स, बोलो। हेमाक्षी, शी इज प्रेजेंट हियर, नो। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज मॉर्निंग प्रेजेंट में रह के सोते रहते हैं बच्चे। 105 ये लास्ट देते हैं। हिमाक्षी, हु इज द नेक्स्ट पर्सन? हिमाक्षी, Yes, sir. नहीं, नेक्स्ट नेम बोलो जल्दी से। Glory. ग्लोरी, शी इज प्रेजेंट हियर, ग्लोरी इज नॉट देयर। Yes, sir. Very good, Glory. So I will wind up here. No, I don't want to add any more details. Added. Details are added now. Now Glory is added. I'll have to go for my read ka program now. I'll open my read wala program. F read. So F read. There F read. Yeah. Now when I'm reading, again look at this. क्या किया आपने यहाँ पे, कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या? Yes, करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स? Yes. Yes. तो ये चेंज किया, और कहाँ पे चेंजेस करना है? यू हैव एडेड वन मोर स्ट्रक्चर। हाँ, एट द टाइम ऑफ रिट्रीविंग दिस यू हैव टू हैव वन मोर फील्ड, दैट इज एल डी, एंड एल डी को यू हैव टू हैव s.cn, कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रिंट करना है। एंड बिफोर आई शुड प्रिंट ऑल दिस, लेट मी क्लियर माई स्क्रीन सो दैट जरा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। क्लियर स्क्रीन, एंड लेट अस सेव दिस चेंजेस, सेव दिस एंड कंपाइल दिस, रन दिस। ओ देखो आया सब स्टूडेंट्स। लास्ट वाला कौन है? ग्लोरी किधर चली गई भाई? ग्लोरी, लास्ट वाला नेम किधर गया? स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ग्लोरी का क्या हो गया? हाँ, ग्लोरी। चलो अब हम एक काम करते हैं, बार बार यहाँ नहीं आएंगे। आई डोंट वांट टू कम एवरी नाउ एंड देन ओवर हियर। So what I will do, I will copy this. I'll go to my program F-Write. I'm into the F-Write. देखो मैंने क्या कर दिया था कि फाइल को क्लोज कर दिया। मेरा फाइल which was there in the read write mode, I have closed that file and now I'm going for, फिर से वो फाइल को वही प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम में मैंने ओपन किया। Look at this. I have opened the same file after closing W. I have opened in read mode. मैं रीड कर रहा हूँ और फिर से वही कंडीशन, और फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ। बाद में रीड करने के बाद फिर से मैं क्लोज कर दूंगा। सो इन द सेम प्रोग्राम आई एम डूइंग 2 in 1 ऑपरेशन। एक प्रोग्राम में दोनों ऑपरेशन। पहले आप रीड, पहले वो राइट करेगा फिर रीड करेगा, राइट स्टूडेंट्स? हाँ, ये अच्छा है सर, बार बार प्रोग्राम क्यों चेंज करें इधर से उधर जाने का। तो मैं रन कर रहा हूँ, तो रन करो आप इसको। रोल नंबर दो 101, पहले सबसे पहले ग्लोरी को डालो next time because her name was missing, so Glory,
to add, yes, 102 Emaxi भी मैंने ऐड कर दिया। नो, बस इतना बहुत है। देखो आगे दोनों, यस और नो। मैंने ऐड कहां पे किया था? हमने फाइल में ऐड किया था। इमीडिएटली फाइल क्लोज हुआ, इमीडिएटली फाइल रीड हुआ और रीड करके तुरंत प्रिंट हो गया, राइट? Getting my point, students? I'm not printing directly. I am not printing. I have written all that information into the file, and then there is a second part of the program which has read the information from the file and has printed the same. Right? Is that clear, students? किसी को कुछ डाउट है इसमें जो मैंने किया अभी? No, sir. कितने अच्छे बच्चे, कोई डाउट ही नहीं रहता है स्टूडेंट्स को, राइट? अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि अगर मुझे ऑपरेशन करने हैं, मतलब एक फाइल है, फाइल में मुझे कभी ऐड करना है, तो मुझे ऐड करना पता चल गया सर कैसे ऐड करना है, कीप ऑन एडिंग। फिर कभी कभी मुझे चलो ऐड हो गया, कैन यू डिस्प्ले द लिस्ट व्हाट आई हैव एडेड? यस, दैट आल्सो यू हैव सीन हाउ टू डिस्प्ले द लिस्ट व्हाट यू हैव एडेड। सर मुझे मॉडिफाई करना है। क्या करना है? मॉडिफाई। ध्यान से सुनना, मॉडिफाई करना है स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैंने 10 बच्चों के नाम ऐड किए हैं और मैंने देखा कि हेमाक्षी के नेम में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या उसके रोल नंबर में या उसके कॉन्टैक्ट नंबर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है करके, सो व्हाट आई हैव टू डू स्टूडेंट्स? मुझे क्या करना चाहिए फिर उसके लिए? बोलो, कहां पे चेंजेस करना चाहिए? हाँ स्टूडेंट्स, कैसे मॉडिफाई करेंगे हम? अब प्रॉब्लम हो रहा है, चलो हम आप बात करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पहले होगा कैसे। लेट माय बोर्ड शुड गेट लोडेड फर्स्ट। Please students, nobody used to come with a list of doubts. I always welcome list of doubts. इसका मतलब ये है कि if you are not demanding anything, you are not studying anything. कुछ पढ़ाई नहीं करते हमारे बच्चे, right? Students, तो फिर डाउट नहीं है तो मतलब हम सब झूठ बोलते रहते हैं सर को रोज। हाँ स्टूडेंट्स, चलो अब हम बताने जा रहे हैं आपको मॉडिफाई। जैसे कि आपने बोला सर कि हमारे पास 101, 102, 103, 104, 105, कुछ भी नाम दे दो, ग्लोरी दे दिया, हेमाक्षी दे दिया, इफत कर दिया, कैफ हो गया, सिक्का हो गया, राइट? और इनके कांटेक्ट नंबर भी मैंने दे दिए यहाँ पे, सबके कांटेक्ट नंबर। एंड आई फाउंड कि बाबा आई नीड टू चेंज दिस इफत का डिटेल्स, कुछ तो गड़बड़ है, आई हैव टू चेंज दिस, राइट? आई हैव टू चेंज दिस। व्हेन विल यू रियलाइज कि मतलब अगर जब आपको पता चला कि इफत का नेम या कांटेक्ट नंबर कुछ चेंज करना है, समथिंग वेंट रॉन्ग, आपका आपका पोजीशन किधर है, कर्सर किधर है? जैसे मान लो मैं पहला रिकॉर्ड रीड किया 101 और मैंने बोला हर्षल, हर्षल, राइट? जब ये मैंने रीड किया तो आपका कर्सर यहां पे है कि यहां पे है, कहां पे है स्टूडेंट? स्टार्टिंग में है कि एंड में है कि एंडिंग में, राइट? तो वही चीज जैसे मैंने यहाँ पे जब मैंने इफत का डिटेल को नोट डाउन किया है कि देर इज समथिंग रॉन्ग, सो वेयर इज माई कर्जर? इट इज बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड और एंड ऑफ द रिकॉर्ड? एंड में है, तभी तो रीड कर पाओगे ना, कॉमन सेंस है ये तो। सो एंड ऑफ थर्ड रिकॉर्ड, लाइक दिस इज माई फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, दिस इज थर्ड रिकॉर्ड. So you are saying end of the record. You are saying end of the record, that is you are at the beginning of the fourth record, right? Your end of third record means beginning of the fourth record. Is that clear, students? Yes. Yes. तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आप पहले
जब आपको मालूम पड़ा गड़बड़ है तो सबसे पहले पूछोगे एंटर द नेम विच यू वांट टू मॉडिफाई, enter the name which you want to modify, and you will be searching that name in the list of names, and as and when you found, अगर मुझे मालूम पड़ गया कि हाँ मिल गया सर, नेम मिल गया ये वाला, इसको मुझे मॉडिफाई करना है, जब आपने बोला मिल गया, सो बाय दैट टाइम मिल गया तो योर पोजीशन इज नॉट इन द बिगिनिंग, योर पोजीशन इन द एंड, आप एंड में, राइट, एंड में रहते हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? कहाँ रहते हो आप? एंड में, राइट, एंड में, मतलब आप तब तक कहाँ शिफ्ट हो गए, आप बिगिनिंग ऑफ फोर्थ रिकॉर्ड में आ गए, यहाँ पे आ जाते हो, राइट। बाद में यूजर को बोलते हो कि ये जिसको मॉडिफाई करना है, एंटर न्यू डिटेल्स, मतलब आपको क्या चेंजेस चाहिए, एंटर न्यू डिटेल्स। आपने मिस्टेक किया ना, ठीक है, चलो आप बोलो आगे क्या डालना है, उसका रोल नंबर चेंज करना है, नेम चेंज करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी चाहिए, एंटर न्यू डिटेल्स। सो यू एंटर दैट न्यू डिटेल्स, बट नेट न्यू डिटेल्स, आई एम एट दिस प्लेस। आप कहाँ पे हो सर? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ पे? आप यहाँ पे हो, ये लाइन पे हो, मतलब ये लाइन के बिगिनिंग में हो, यहाँ पे हो, राइट, यस और नो? Yes. और मॉडिफाई किसको करना था आपको? मॉडिफाई किसको करना है सर? मॉडिफाई तो मुझे इसको करना है, थर्ड को, यानी ऊपर वाले रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है। और आप हो कहाँ पे? सर मैं तो इधर हूं। मॉडिफाई किसको करना है? थर्ड को करना है। अब आप ऊपर कैसे जाओगे स्टूडेंट्स? आपको कितना स्टेप ऊपर जाना है, कितने बाइट्स को बाई सबट्रैक्ट करके ऊपर जाना है? आप कितने बाइट्स एक्स्ट्रा आगे आ गए? कितने बाइट्स एक्स्ट्रा आगे गए आप? 26 बाइट्स, राइट। ये प्रोग्राम में आप 26 बाइट्स आगे चले गए हो। तो जो अगर आपको ऊपर चेंजेस करना है तो आप उतना 26 बाइट्स पीछे जाना पड़ेगा आपको, राइट, यस और नो स्टूडेंट्स? यहां से जो भी Yes. पोजीशन है वहां से 26 बाइट्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड रिकॉर्ड, राइट, यस और नो? तो सबसे पहले आप 22 बाइट्स पीछे जाओ, एंड वो पीछे जाने को आपको कौन लेके जाएगा? वो फंक्शन का नाम होता है एफ सीक। मैं इसको बुलाऊंगा और ये मुझे 22 बाइट्स पीछे कर देगा। और जब वो पीछे करेगा फिर मुझे लिखना है, फिर से वहां पे मैं लिख दूंगा एफ राइट, मतलब आप पोजीशन यहां कर दिया जब मैंने आपकी, तब वहां पे मैं लिख दूंगा एफ राइट, प्लीज राइट व्हाट, वो जो मैंने न्यू डिटेल लिया था इफत का, आप वहां पे लिख दो, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? हेलो? तो वो रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन करूंगा जब मैंने मॉडिफाई कर दिया ये रिकॉर्ड, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया रिकॉर्ड, तो मैं अब कहां हूं? एंड ऑफ थर्ड या बिगिनिंग ऑफ थर्ड? आफ्टर मॉडिफिकेशन एंड एंड ऑफ थर्ड, End of third. एंड ऑफ थर्ड, बट यूजर मे वांट टू मॉडिफाई सम मोर, राइट, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं एक ही रिकॉर्ड मॉडिफाई करना, और भी मॉडिफाई करना होगा उसको, राइट। तो मैं यूजर को फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब I'll throw a question, would you like to modify some more record or want to modify another record? User will say yes. Then I will say, please enter the name which you want to modify. Now user has entered Glory. फर्स्ट रिकॉर्ड उसने एंटर कर दिया, फर्स्ट वाले को मॉडिफाई करना। आप हो कहां अभी? वेर यू आर राइट नाउ? आर यू इन द फर्स्ट और यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ? आप बिगिनिंग ऑफ फोर्थ हो। अब आपको सर्चिंग कहां से करना चाहिए? फोर्थ से स्टार्ट करना चाहिए कि फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए? जो नया मॉडिफिकेशन करना है, यू शुड स्टार्ट सर्चिंग दैट रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट रिकॉर्ड और फ्रॉम द फोर्थ रिकॉर्ड। कहां से सर्च? फर्स्ट से करना चाहिए। अब आप अपने आप को फर्स्ट में कैसे लेके जाओगे? So there is something called, see, all this function you should keep in mind. There is something called as rewind fp। तो जो एफपी को जब रिवाइंड करेंगे, रिवाइंड जैसे कैसेट को कैसे रिवाइंड करते थे पुराने जमाने में, राइट, पूरा सॉन्ग खत्म हो गया, बोले फिर से सब वही सॉन्ग सुनना है, तो बोले रिवाइंड कर दो सर। जो पहले वीसीआर और तुम्हारे जमाने में थे कि नहीं, वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स देखे कि नहीं देखे स्टूडेंट्स, राइट? तो आप उसको रिवाइंड करोगे, तो जैसे आप जब रिवाइंड करोगे, इट विल टेक यू एट द बिगिनिंग। द जॉब ऑफ रिवाइंड फंक्शन इज टू टेक यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल।
So before I should start searching my Glory name which you want to modify, I should rewind, and then I should matching ki now is this name is Glory, is the second name is Glory, is the third name is Glory, is the fourth name is Glory. So again if I'll get that name, तो जब वो मिलेगा वो name, so then again my cursor will be end of that record. तो वो फिर से मैं यूजर से नया डिटेल पूछूंगा और फिर से मुझे fseek का जरूरत पड़ेगा, फिर से उतना बाइट मुझे पीछे करना पड़ेगा, and then I can write after this one new record, right students? हेलो, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मॉडिफिकेशन में जब आप जो भी रिकॉर्ड मॉडिफाई करते हो वो रिकॉर्ड के एंड में चले जाते हो, मतलब बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रिकॉर्ड पहुंच जाते हो, और जिसको मॉडिफाई करना है उसके लिए आपको पीछे आना पड़ता है। पीछे कौन लेके आता है? fseek। और फिर से नया रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है तो अगेन यू हैव टू रिवाइंड करना पड़ता है, बिकॉज न्यू रिकॉर्ड अगेन यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, not from anywhere, wherever you are after the first modification. Second modification, if you are doing, you have to bring yourself to the beginning. How will you bring? With the help of rewind, right? And मान लो rewind second के लिए, suppose it happens to be the second record is found at the 8th place. तो 8th place में कैसे गए आप? rewind करके आप वहां पे गए, right? Students, you have started searching from the first. Now similarly अगर कोई बोलता है सर मुझे delete करना है, क्या करना है मुझे? डिलीट। किसको डिलीट करना है सर? ये हर्षल को डिलीट करना है। क्यों सर? ही लेफ्ट द कॉलेज। ओके, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जो भी लिस्ट ऑफ नेम्स है यहाँ पे, जितने भी नेम हैं और उसमें एक बीच में हर्षल है, ये हर्षल है, राइट? सो व्हाट आई विल डू, एक्सेप्ट हर्षल, ये मेरा ओरिजिनल फाइल है, ये मेरा ओरिजिनल फाइल है और ये मेरा टेम्पररी फाइल है। तो except Herschel, if the name is not Herschel, then what you do, transfer all these names. Here you had 6 names, here there is going to be 5 names. Except Herschel, copy all the names into this file. Except Herschel को वहां कॉपी मत करो, बाकी सबको कॉपी कर दो। सर ये तो अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे, ये जो टेम्पररी फाइल नेम है, टेम्पररी फाइल नेम, उसको मैं रीनेम कर दूंगा। रीनेम क्या करोगे उसको? आप रीनेम करेंगे उसको, वापस ओरिजिनल फाइल बना दूंगा। रीनेम दिस टेम्प टू ओरिजिनल फाइल, जो भी ओरिजिनल फाइल नेम होगा, राइट? तो अब ओरिजिनल फाइल में मुझे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? 1 लेस, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? कितने मिलेंगे? 1 लेस। हर्षल इज नॉट देयर इन दैट ओरिजिनल फाइल नाउ, जो मैंने फिर से रीनेम किया टेम्पररी का। तो ये मेरे 5 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। अब मुझे पूछना है भाई, मुझे और किसी को डिलीट करना है क्या? अगेन आई आस्क द क्वेश्चन टू द यूजर, वुड यू लाइक टू डिलीट सम मोर? यस, आई वांट टू डिलीट। तो फिर से यहाँ पे रिवाइंड आएगा, और अब जिसको भी डिलीट करना है, सपोज यहाँ से कैप है, कैप को भी डिलीट करना है, सो अगेन आई विल ओपन दैट टेम्पररी फाइल एंड एक्सेप्ट कैप, आई विल राइट अनदर 4 रिकॉर्ड इनटू दिस, राइट? एंड अगेन आई विल रीनेम दिस, एंड व्हेन आई एम रीनेमिंग दिस, आई विल डिलीट माय व्हाट? स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए स्टूडेंट? यस, डिलीट ओरिजिनल। रीनेम टेम्पररी को ओरिजिनल बनाओ और ओरिजिनल वाले को डिलीट कर दो। सर बस ये फाइल है बस। तो ये काम करते रहना है। जितनी भी आपको रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो आप जिसको डिलीट करना है उसको टेम्पररी में मत कॉपी करो, उसको छोड़ के बाकी सबको कॉपी कर लो, और बाद में ओरिजिनल को डिलीट कर दो और टेम्पररी को ओरिजिनल बना दो। बस यही काम करना है। सर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, राइट? तो इसको, ये प्रोग्राम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये प्रोग्राम को हम चाहेंगे आई शुड टेक इट इन 1 2 3 4 स्विच केस में लेके चलें। और यूजर 1 प्रेस करेगा तो मैं ऐड करूंगा, यूजर 2 प्रेस करेगा तो आई विल गो फॉर द लिस्टिंग, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। यूजर 3 प्रेस करेगा तो मैं मॉडिफाई करूंगा। यूजर 4 प्रेस करेगा तो आई मे गो फॉर द डिलीट, राइट? यूजर 5 प्रेस करेगा तो आई विल कम आउट ऑफ द प्रोग्राम, एग्जिट कर देंगे। व्हाट यू वांटेड टू डू? And last time, which you remember, कि now henceforth I will be using RB and WB. R is for what? Reading. W is for writing. R is with respect to the text file, and RB will be with respect to the binary file, students.
Are you reading binary file, writing in a binary file, reading from the binary file? What was the three differences which you have seen last time between the text file and the binary file? Students? Hello? क्या बात कर रहे हैं तुम? किधर बात कर रहे हैं? कैफ? Kajol, I had told you three differences between the text and the binary file. What was the first difference? Yes, sir. In text file, we can. It was, sir, मतलब उसमें जो हम लोग काउंट करते थे नंबर्स को. बहुत कंफ्यूजन है, राइट? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको तीन डिफरेंस बताए थे. एक डिफरेंस था विथ रिस्पेक्ट टू EOF, एंड ऑफ फाइल का डिफरेंस था. दूसरा डिफरेंस था दोनों के बीच में स्टोरेज का, और तीसरा डिफरेंस था दोनों के बीच में न्यू लाइन का. देखो मैंने बहुत स्वीट एंड शॉर्ट में लिख दिया. पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में EOF, एंड ऑफ फाइल का. दूसरा है स्टोरेज का. तीसरा है न्यू लाइन का. एंड ऑफ फाइल में मैंने बताया था कि जब आपके पास टेक्स्ट फाइल होता है एक, और एक बाइनरी फाइल होता है, और ये एंड ऑफ का ASCII वैल्यू 26 होता है, तो इसको कहीं से भी 26 जब मिल जाता है एट द टाइम ऑफ रीडिंग द फाइल, तो फाइल को टर्मिनेट कर देता है, क्लोज कर देता है. इट अज्यूम्स दैट दैट इज द एंड ऑफ द फाइल. इट नेवर रिकॉर्ड्स फर्दर रिकॉर्ड्स, नेवर रीड फर्दर रिकॉर्ड्स. बट वो चीज बाइनरी में नहीं होता है, बिकॉज बाइनरी में मैंने बताया कि उसकी एंट्री कहाँ होती है, कितना बाइट्स का फाइल है, वो डायरेक्टरी को पता रहता है, फोल्डर को पता रहता है, राइट स्टूडेंट्स? हेलो? तो ये पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था. अब कैफ कुछ भी नहीं बोलना है कि सर बाइनरी को हम रीड ही नहीं कर पाएंगे, राइट? दूसरा नंबर है स्टोरेज का था. मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 रखोगे तो एवरी डिजिट विल टेक 1 बाइट ऑफ मेमोरी. 5 डिजिट है 5 बाइट्स. लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 रखोगे तो इट इज इंटीजर नंबर्स, ओनली 2 बाइट्स, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ पे जितने डिजिट आप रखोगे उतना बाइट मेमोरी चाहिए. यहाँ पे टाइप के हिसाब से चलता है. व्हाट टाइप ऑफ नंबर इट इज, अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ बाइट्स विल बी गिवन टू दैट नंबर. यहाँ पे कोई ऐसा कोई है ना जैसे बड़ा नंबर ले लिया 2 3 4 7 6.8 2 5, इसमें कितना चाहिए? 5 + 1 + 5 + 1 6 + 9 बाइट्स चाहिए. और ये तो फ्लोट नंबर है ना. फ्लोट नंबर को 9 बाइट्स क्यों देना है? ये 4 बाइट्स ही देगा बाइनरी, राइट स्टूडेंट्स? इफ यू आर राइटिंग, जैसे मान लो सिंपल बात है, जैसे अभी हम बच्चों की डिटेल ले रहे थे, रोल नंबर, नेम एंड द कॉन्टैक्ट नंबर. अगर मैं इसको टेक्स्ट फाइल में लिख रहा था, W में लिख रहा था, तो मैं गलती कर रहा था, अच्छा काम नहीं कर रहा था. आई शुड हैव रिटन इन सम अदर मोड. क्योंकि आपके फोन नंबर होते हैं 10 डिजिट के. सबके फोन नंबर 10 डिजिट के होते हैं. अगर मैंने 10 रिकॉर्ड लिया है और 10 फोन नंबर है, तो ये 100 बाइट में स्टोर होगा. कितने में स्टोर होगा? केवल फोन नंबर कितनी बाइट में स्टोर होंगे? 100 बाइट, 100 बाइट्स, राइट? अगर यही इसको ही अगर मैं WB में कर दूं, तो हर एक फोन नंबर कितने बाइट्स में स्टोर होगा? 4 बाइट्स, राइट? तो नहीं, फ्लोट नहीं, लॉन्ग इंटीजर में. तो हर एक फोन नंबर 4 बाइट्स में स्टोर होगा. तो 10 फोन नंबर स्टोर करने के लिए मुझे 40 बाइट्स चाहिए, राइट? यस सर. तो मुझे किस में रखना चाहिए अपना स्टोरेज? WB में रखना चाहिए कि WB में चलना चाहिए? W is for writing in a text file. WB means for writing in a binary file, right? ये text है, ये binary है. R is for reading from the text file, and RB is reading from the binary file. लेकिन अब गलतियां नहीं करना. मान लो आपने किसी फाइल में कुछ लिखा है, जैसे आपने अभी लिखा था F = F open and some file name and you said W, you have written in W, और इसमें कुछ तो लिख दिया है आपने, और बाद में यहाँ आते हैं सर F = F open, अब मुझे इसको रीड करना है. कौन सा? वही जिसमें लिखा था एंड नाउ आई एम राइटिंग RB. बोले तुम पागल हो? लिखते हो टेक्स्ट में और रीड करते हो बाइनरी में, चलेगा? सर दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल. ये नहीं चलेगा.
आपको जब WB में लिखोगे तो ही आपका RB चलेगा, राइट स्टूडेंट? सो यू कैन नेवर Yes. गो फॉर RB, नॉट टू, ऐसा क्रॉस नहीं चलेगा आपका कि लिखा है टेक्स्ट फाइल में और बोलते हैं रीड करेंगे बाइनरी में, नॉट पॉसिबल, राइट? एंड वाइस वर्सा, अगर आपने लिखा है WB में लिख दिया अगर आपने, तो यहाँ पे RB नहीं चलेगा। बाइनरी में लिखा है और बोलते टेक्स्ट में रीड करना है, चलेगा ऐसा? नो No, सर। sir. So be careful. If I have written in binary, you should read in binary. If you have written in text, you should read in text. Right? Students. किसी को डाउट आ रहा है कुछ? No. तो मेरे फाइल मोड कौन कौन से थे? फाइल के मोड, फाइल में टेक्स्ट टाइप में और बाइनरी टाइप में। सर एक तो था W, तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे WB, यहाँ पे R है तो यहाँ पे RB है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे AB है। A is for what? Students, A is for what? Append. Append. And this AB is for what? Append in binary. Append in binary mode, right? It is not your ABCD wala AB. A stands here append, B stands for in the binary file, in the binary mode, right? It not in the text mode. Like W is for writing, B stands for binary mode. R is for reading, B stands for binary, right? Students. So similarly, if I'm saying AB, that means you are appending in the binary mode. If you just said A, that means text mode. Okay. And so you know the difference now. What is the difference between A and AB? What is the difference between W and A? Anyone? W और A में क्या difference है? Students. Last time I had told you what was the difference between W and A. Anyone? मैंने बताया था कि W में अगर आपने राइट किया है, does not erase the previous data. नहीं, W इरेज करेगा, फिर से अगर W में जाएंगे तो इरेज कर देगा, और A में रहेंगे तो इट वोंट इरेज द प्रीवियस डेटा, राइट? If you are using A, it won't erase the previous data, whereas W will erase the previous data. Same with WB and AB, उसका भी वही स्टोरी रहेगा, right? WB and AB. Students, yes. मेरे बच्चे सब टायर्ड हो जाते हैं, लगता है किधर हैं हमारे सब छोटे छोटे बच्चे? लेट मी टॉक टू देम। नहीं तो बोले सर क्या कराते रहते हैं। यस सिक्का, हाउ आर यू बेटा? Fine, sir. और ये जरा इमेजेस जो डालते हैं, किसने डाला? ये कार्तिक क्या है, वसम सेट्टी कार्तिक, जरा इमेज अच्छा डालो। जब गुरु के पास आते हैं टू रीड समथिंग, टू गेट द नॉलेज, आप उसमें अपने आप को हाइड करके नहीं आते हैं। यू शुड बी विजिबल, राइट? माई इमेज शुड बी विजिबल so that the teacher can see us and can call us, and you should be very lucky if somebody is calling you by name, right? अगर मैं भीड़ में था, मेरे गुरु ने मुझे नाम से बुलाया, that means you should be very lucky in that crowd. So there are many people, they have hidden themselves. फोटो ही नहीं लगाया, there is no image only. Patel, Himakshi, image is missing. Nadar Naveen Raj, no image, right? वर्मा, सुषमा, सर जरूरत नहीं है फोटो मेरा, राइट? बोलो। You can see whatever is there in my screen. My screen is there in front of you, right? Sir, I put the image. I don't know why it is not visible. Even this Even I can see when the master shares the screen. ये देखो, वसम सेट्टी ऐसा इमेज डाला है। ऐसे बच्चों को ऐसा कोई रियल में अपना गुरु के पास जाएगा, गुरु उसको लाइक करेगा क्या? कैसे इमेज डालना चाहिए? हाँ सर, दिस प्लेस इज टू गेन द नॉलेज, मतलब सिंपल सोबर में रहना चाहिए सर। ये कोई इवेंट नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है कि हम कैसा भी लाइटिंग वाइटिंग का इमेज डाल रहे हैं यहाँ पे। हु इज दिस वसम सेट्टी? कार्तिक आर यू देयर? क्या थॉट प्रोसेस चलता है आज के बच्चों के माइंड में? रियली डू नॉट नो, राइट? Yes, sir. I am there. There is noise. That's why I am not.
No, but why you have added this kind of image, beta? Yes, sir. Why you have added this, uploaded this kind of image? Sir, it was there from the starting. I didn't change it afterwards. I So forgot. you don't want to change, right? You want to look like this only in front of the teacher, right? Suppose you are No, in the sir. Actually, I forgot about it. no, suppose if you are there in the class offline, ऐसे तुम टीचर के पास जाओगे जैसा इमेज अभी रखा है, नहीं ना? No, sir. Will the teacher will be happy with this image? No. Well, sir, if Tomorrow, it is offline, we will be showing our face, right? so in future, tomorrow, in case if you will become a teacher, what kind of students you will like? Bolo, sir. Suppose you create yourself in the place Sir, of teacher, well, and I would then like to be them independent, maybe. independent मतलब Vasam Shetty, Karthik. Yes, sir. What do you mean by independent? मतलब they let them do whatever they want, right? Not like that. They can do, but there are some restrictions like that. Yes, there are some restrictions. So even you can do, but in the class, you have to be proper, right? Decent होना चाहिए in the class, right? If there is some function Yes, in the sir. college, yes, you can change your getup. People will be happy. Even the teachers will be happy, right? So the thing changes from place to place. So if you, right now you are in the class, so you have to be like how the student should be there in the class. You change your photograph now, okay? Okay, And sir. I can see there are so many students. बहुत सारे लोग ने तो फोटोग्राफ ही नहीं लगाया. ये कोडी कौन है बाबा? प्रियदर्शनी, किसका फोटोग्राफ लगा दिया कोडी ने? ओ, कृष्णा का फोटो लगाया है. और ये कौन है बाबा? हेमा. हेमा नो फोटोग्राफ, राइट? Students, who is this Maurya Anmol? Maurya ji? No, he's not there right now. Let me check. ये मलिक साइमा कौन है भाई? नो फोटोग्राफ. नडर माइकल, नडर नवीन राज, नडर रॉबिन्सन. जितना नडर है सब फोटोग्राफ लगाया ही नहीं. सबका सब नडर वाला का फोटोग्राफ गायब है, राइट? ये सब नडर, नासिर. हु इज दिस नासिर मिराज? ये कौन है भाई? Sir, it's me. वेयर आर यू बेटा? प्लीज विजिबल हो जाओ. Sir, 1 second. Yes, beta. Yes, take your own time. मॉर्निंग में एंड व्हेन यू आर बिकमिंग विजिबल, जरा डिसेंट विजिबल होना. कैप के जैसा विजिबल मत हो जाना. एक बार कैप विजिबल हुआ था, राइट? कैप एक बार तुमको विजिबल किया था, तुम कैसे बैठे थे? कैसा भी नहीं बैठने का, ठीक है? देन हु वाज दैट पर्सन? हाँ, यस. हाँ. Actually, in my classes in CS, I have written the clear instruction. Pura during the lecture, you have to sit decently. Anytime the teacher may call you, so you should be proper dress code में रहना है. It's not that I am at home, so I can, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे हम रहेंगे. You can, but not during the lecture time. So yes, Nasir. So 1 second, actually I've joined from my laptop, so it's the settings I have to change. It's not working. अरे वीडियो को एनेबल करना रहता है, दैट्स ऑल. चलिए, कौन है दूसरा? नाइक सोहम. नाइक सोहम, वेयर आर यू बेटा? नाइक सोहम. Naik Soham, are you there? He's not there, right?
सोहम किधर है बाबा? हु इज दिस नायडू विक्रम? यस सर, आई एम हियर। वो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। हाँ, ये कौन है बाबा? नाइक सोहम हाँ सर। इधर। चलो आ जाओ, वीडियो में बात करते हैं, जरा देखें भाई कौन है बच्चा, अटेंड करता है कि नहीं। एक मिनट है सर। Yeah, I know I'm on mute. I'm just waiting for these people, how long these people are going to take time. I call them in the video. Okay, ये कौन है बाबा? थोड़ा डिसेंट में आओ भाई। नाइक सोहम, तुम्हारा शर्ट वर्ट का जरा ठीक करो तुम। तो सोहम, तुम्हारा भी तो ऐसे ही तुम बैठ गया हाँ लेक्चर में, इधर सो के उठ के इधर ही बैठ गया, ठीक है भाई? म्यूट है तुम, म्यूट है। सॉरी 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 सर। नहीं सर, ना लिया है मैंने। ऐसा लग तो नहीं रहा है। सर नहा के बैठा है सुबह जल्दी उठ के। सुबह जल्दी उठ के ऐसा लगा नहीं कि तुम नहा लिया है। नहीं सर, नहा के बैठा है, वरना नींद आती है ना इसलिए। अच्छा, वरना नींद आती है तो ऐसा सो जाते हो क्या बीच में कभी कभी? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर, लेक्चर के बीच में नहीं। ठीक ठीक। और पढ़ाई करते हो तुम? हाँ सर। करते हो, लेकिन तुमको जरा ऐसा क्या बोलते हैं, गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं सर। सच बोलना। नहीं सर नहीं। किसके ऊपर गुस्सा होते हो? नहीं सर, घर पे तो किसी के ऊपर नहीं हो सकते ना। हाँ, घर पे, लेकिन आता है जल्दी से। हाँ। जल्दी से हीट हो जाते हो। हाँ। क्यों ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ अगर गलत हुआ ना वही उसी टाइम, वरना ऐसे ही नहीं। हाँ, वही वही, उस टाइम में बहुत हीट हो जाते हो तुम, बर्दाश्त नहीं है तुमको फिर, राइट? हाँ सर। ठीक। तो यू डोंट वांट टू सॉल्व द मैटर्स पोलाइटली। तुम्हारा मैटर जो सॉल्व करने का जो अंदाज है वो थोड़ा वो दूसरे लेवल में चला जाता है, राइट? हाँ सर, नॉर्मली नहीं, कभी कभी। हाँ, वही मैं देखता हूँ, ये बच्चा थोड़ा हीटिंग वाला है, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तुम्हारा। ये भी बात रखो, यू आर नॉट गिविंग योर 100% टू योर एजुकेशन, राइट सोहम? नहीं सर, ट्राई कर रहा है देने को। ट्राई कर रहे हैं आप, 100% नहीं दे रहे हैं अभी। दैट इज व्हाट आई मीन टू से हियर, एज द आई वर्ड विल यू आर। ट्राई। हाँ, ट्राई, बट ये ट्राई से नहीं चलेगा काम। तुम्हारा फोकस इज नॉट इन टू दिस, आई मीन इन योर स्टडी, 100% फोकस इज नॉट देयर, राइट? सर मैं ट्राई करेगा अगली बार तो से। किधर किधर तुम्हारा डिस्टरबेंस किधर हो रहा है? तुम्हारा फोकस किधर जा रहा है? समझा नहीं मेरे को। मतलब तुम फोकस किधर कर रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल उनके साथ में भी टाइम पास कर रहे हो तुम? नहीं सर, ज्यादा नहीं जाता फ्रेंड्स के साथ। नहीं, फिर क्या हो रहा है? मतलब कहाँ फिर 100% स्टडी में क्यों नहीं है फोकस? शायद मोबाइल है या ऑनलाइन स्टडीज है, ऐसा यस, कुछ इसकी वजह से। सोशल मीडिया में फिर अंदर चले गए हो तुम? नहीं सर, ज्यादा टाइम नहीं रहता सोशल मीडिया पे भी। कितना रहते हो फिर? कुछ ना कुछ तो रहते हो ना? हाँ सर, कुछ ना कुछ रहता है। भले ही डिवाइस कुछ ना कुछ, इट डजंट मीन ज्यादा टाइम। मतलब ये नहीं कि मैनी ए टाइम्स स्टूडेंट्स, ठीक है मोबाइल हाथ में नहीं है लेकिन थॉट प्रोसेस तो वही चलते रहता है, जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, राइट? कमेंट्स, लाइक्स, वट एवर, इवन दो द मोबाइल इज नॉट इन माई हैंड, बट स्टिल द माइंड इज इन दैट डायरेक्शन ओनली, राइट? हाँ सर, कभी कभी होता है ऐसा। ऐसा हो रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन में हो तुम, और वो डिस्ट्रैक्शन इज नॉट allowing you to focus in your studies. ओके सर, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, ट्राई करूंगा। ट्राई क्या नहीं मतलब करूंगा, 100% ही दूंगा स्टडीज में। मैंने क्या बोला है? सबको एंगेजमेंट करना है कि नहीं करना है 2 साल के अंदर अंदर? करना है सर। कैसे ही रहना है तुमको? नहीं सर। पेरेंट्स ऐसे मिडिल क्लास है कि बहुत रिच हैं?
बहुत रिच है तो उनको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है भाई कि ठीक है मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, सो आई विल बी एंजॉइंग माई लाइफ. नो सर, एंड मिडिल क्लास. nobody will get the second chance. जो एज गया ये तुम्हारा 18 19 20 जो भी है, एज गया तो स्टूडेंट्स देन उसके बाद फिर you won't be having anything in your hand, right? And अगर एज गया टाइम गया देन एवरीबडी विल क्राई. यस. तुमको भी रोना पड़ेगा फुल लाइफ. पेरेंट्स तो बेचारे जो भी उनका हार्ड अर्न मनी है इतना मेहनत से कमाते हैं, तुम्हारा फीस भरते हैं, तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उनके पैसे को वेस्ट मत करो बाबा. हाँ यस सर. तो हम यस सर. और पेरेंट्स के ऊपर क्यों गुस्सा होते हो तुम? नहीं सर, पेरेंट्स के ऊपर नहीं होता गुस्सा. किसके ऊपर हो जाते हो कभी कभी? फ्रेंड्स के ऊपर कुछ हुआ तो ऐसे. लेकिन गुस्सा नहीं होते, लेकिन बात नहीं करते हो. अगर तुमको पेरेंट्स ने तुरंत बोल दिया कुछ तो तुम उसको मन में लेके बैठे रहते हो, राइट? नहीं तो सर, ज्यादा टाइम नहीं होता है सर, थोड़ी नहीं, देर के लिए सिर्फ. हाँ लेकिन गुस्सा तो रहते हो ना, तुरंत बात नहीं करते हो तुम. आपको लगता है उनकी बातें अच्छी नहीं लगती तुमको? क्यों ऐसा? नहीं सर. नहीं सर, वो मेरे फ्यूचर के लिए ही बोलते हैं ना. वो बाद में ऐसा सोचते हो ना, तुरंत तो नहीं ऐसा सोचते हो, राइट? हाँ सर. तो तुरंत तो हम नहीं सोचते, तुरंत तो हमें अच्छा नहीं लगता है. ये क्या रोज रोज वही बोलते रहते हैं, राइट? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, घर- कभी कभी सिर्फ ऐसा सोचते हैं. घर पे कौन है? हाँ, मम्मी है. मम्मी है? हाँ. मम्मी से बात करूं? नहीं सर, अभी क्यों, मम्मी काम कर रही है ना. तो क्या हुआ, मम्मी से बात करता हूँ मैं. नहीं सर, एक्चुअली मम्मी को जॉब पे जाना होता है ना, इसलिए हाँ. वो काम में बिजी रहती है. तो वो तो मैं सबकी मम्मी बिजी रहती है यार. हाँ सर अभी नहीं. हाँ. पोल पट्टी खुल जाएगी तुम्हारी मम्मी से, मैं बोलूं क्या क्या करता है बच्चा ये, राइट? नहीं सर. और मम्मी पापा जॉब पे हैं, इसीलिए तुम्हारा फोकस एज के हिसाब से भटक गया है मिस्टर सोहम, राइट? यस और सर. हाँ, रोज एंड ऑफ द डे अपने आप को सोचो कि आज मैंने मेरी लाइफ में क्या ऐड ऑन किया, एक्स्ट्रा मैंने क्या ऐड किया. बोलने से कुछ नहीं चलेगा. यस सर. तुमको ये लग रहा है कि कोई केयर टेकर नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है. जो क्वेश्चन करेगा उसको मैं गुस्से में बात करूँ, हाँ मैंने किया तो था, मैंने पढ़ाई की है, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है? बेचारे पुअर पेरेंट्स क्या सुन के ले लेते हैं. हाँ चलो सर, इतने. मेरा बेटा दुखी नहीं होना चाहिए. आजकल पेरेंट्स सब डरते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए, राइट? नहीं सर. मैं अभी मम्मी को बुलाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये डराता है क्या. नहीं सर, मैंने घर पे नहीं चिल्ला था किसी के ऊपर. हाँ. तो क्या क्या करते हो, मैं मम्मी से पूछता हूँ ना कि मैं जितना बात कर रहा हूँ वो सब सच है कि नहीं. नहीं सर. तो अभी कंप्लेन आएगा? नहीं सर. पढ़ाई करोगे? हाँ सर. पक्का ना? हाँ सर, पक्का. हाँ, क्योंकि हम अभी तो जब कभी भी तो कॉलेज में तो मिलेंगे ही ना हम लोग. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन में ही रहेंगे, राइट? हाँ सर, और मिलेंगे. आईटी डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट दोनों नेबरिंग डिपार्टमेंट हैं, साथ में ही हैं, पास पास में. कभी अगर कॉलेज गए होगे, तुमने देखा होगा. गए हो कॉलेज? हाँ सर, 2 बार गए, एक एडमिशन के टाइम और उस दिन फॉर्म ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना था ना उस दिन. तो अपने कॉलेज में ऊपर जाके देखा था तुम्हारा डिपार्टमेंट कहाँ है? नहीं सर, ऊपर नहीं गए थे. हाँ, तो दोनों डिपार्टमेंट नेबरिंग डिपार्टमेंट हैं स्टूडेंट्स. हम सबको कैच करने वाले हैं जितने भी बच्चे. इट्स नॉट दैट कि सर अभी पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स. हम सबको कैच करेंगे, राइट? वो किधर गए? नासिर, क्या नाम था भाई? ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो. नासिर किधर है? हेलो, Yes, sir. वेयर आर यू बेटा? Sir, I'm here. आई कांट सी यू. तुम्हारा नाम क्या लिखा है ये? Sir, it's Johaina. जुहाइना. नासिर जुहाइना. सो जुहाइना प्लीज विजिबल रहो बेटा. Yes, sir. यू आर नॉट विजिबल. 1 second. Yes, sir. यस जुहाइना. सो जुहाइना, यू गिव योर 100%. पढ़ाई करते हैं. Yes, sir. I attend lectures and I understand like whatever everyone's teaching.
But you never ask any doubts. That means Sir, you understand. sir, means you someone else. बोलो बोलो Yes, बेटा. I understand. And if I don't understand anything, someone probably like asked the same question. So I understand from that. No, what that someone should be you. Why you are waiting someone to ask that question, right? Sir, I get nervous. Sir. You get nervous. Yes, you get fear. You get nervous, right? You are Yes, sir. not good in your. I mean, you may be having the knowledge, but you cannot show your knowledge in front of your superiors, your team leaders, right? So Yes, that sir. this nervousness will bring you down, Juhaina, in your life, whatever I'm studying today. And if I'm being nervous throughout my life, right, that I can't be able to show like what knowledge I'm having, you can't be able to express, then where you'll be selected? Tell me. Sir, I'm trying by taking part in different events and trying to talk more to my friends and all. Before I didn't even talk to anyone in the group. So now I'm trying my best to interact and all. No, you should not go to the isolated life, right? You should interact with the Yes, sir. people. You should interact with the people. You should, I mean, this nervousness has to go from your life if you want to become something in your life, Juhaina, Yes, sir. right? Yes, sir. So like, do you speak in your family very well, or in the family also you have this kind of problem? Sir, I can talk to my family members, but not like my distant relatives and all that well. Yes, I can understand. You cannot talk to your relatives. That's the reason I asked you this direct question to the family. You can blood relation ठीक है, but उसके आगे का relation will not be able to talk, right? Yes, sir. Why such problems are there? Sir, from the start only, from school time. Why? But this problem should not be there, beta, then, right? Yes, sir. Because when you'll be sitting in the interview, some panel interview, technical interview, HR interview, and तुम्हारा ये जहाँ पे fear आएगा, then you'll be out. Yes, Maybe sir. they start with a group discussion, and in the group discussion, they won't see like what content you are talking. Content is not important. They will see your participation, whether, because that time maybe your talk may be right or wrong, whatever it is. That right and wrong is not important. Participation is important. That's the reason the companies are keeping group discussion, right? Yes, sir. So then, how going to bring yourself up in the real life? Sir, I'm trying. I'm taking part in events and everything now, so I'll try and get myself out there. You get yourself out there, right? Yes, sir. Okay. So you don't have any problem, as you're saying, in any of the subjects, right? No, sir, I understand everything. You understand everything, right? Yes, sir. What about the subject which I am taking? Sir, it's good. Like, so the variations you show in programs and the little changes you make, I note them down for future reference, and it's good to understand. It takes a little time, but when you explain it further, it becomes clear. It becomes clear, right? Yes, sir. So this subject is very important subject in your real life when you'll be going for the, I will suggest students, all the students, you should understand this language very well. This language, which you are learning, people used to call it as mother of all the languages. C programming is a mother of all the languages. If I can understand C very well, it will take hardly any time to understand other languages. Maybe Java, if I'm there in Java, or any .NET, कहीं पे भी चलो आप, कोई भी scripting में चलो, you will be able to understand everything very well. Because main thing is what you have understood the logic, program लिखना कैसे है. You have understood like what to speak. Just the languages are changing. You can change the languages. That's not a problem. बोलना क्या है, sir? I have know what to say. So that same thing, if you have understood what to say, then you can speak in your mother tongue. You speak in Hindi, English, whatever it is, right? लेकिन जब तक यही नहीं पता चलता है बोलना क्या है, then you even if you know your mother tongue, you can't be able to speak if you don't know like what to talk, right? So chalo, let us begin with programming. Again, we'll begin with the programming. Okay, beta, Juhaina. Okay. Yes, sir. Hello, sir. Yes, who is this now? Sir, मैं कार्तिक. बोलो कार्तिक बाबू. हाँ सर, ये वो लास्ट में कर सकते हो क्या? करो, कोई बात नहीं, लास्ट में करो, कोई बात नहीं. फोटोग्राफ चेंज करना है? नहीं, वो मेरे को भी जरा जानना है मेरे बारे में.
हाँ तो तुम किधर हो अभी? आ जाओ। अभी आ जाओ। हाँ तो आ जाओ। ठीक है सर। जानना क्या है, तुमने पहले अपने आप को बता दिया, इससे सब समझ जाता है टीचर तुम कैसा स्टूडेंट है। हाँ सर, असली में वो फोटो फोटो मतलब मेरा अच्छा नहीं आता, नहीं नहीं, तुम ऐसा मेरा तुम्हारा ओपिनियन। तुम्हारा मेंटालिटी समझ में आ जाता है, राइट। यस सर। चलो इधर आओ पहला तुम। ओके सर। हेलो तुम्हारा सर। इतना बड़ा नाम है तुम्हारा, बाबा नाम तुम खुद ही रीड करके बताओ भाई। सर सरनेम वासम शेख है, फिर कार्तिक मेरा नाम, बाकी मम्मी का है और डैडी। तो मम्मी का नाम क्या है ये? भवानी कनका दुर्गा। और ये डैडी का नाम क्या रखा है? सूर्य नारायण। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर में नाम फिट ही नहीं होएगा, जो 20 हाँ का सर, साइज वो रखा है। मम्मी का इसके लिए शॉर्ट फॉर्म नेम है दुर्गा करके। तो तुमने रख दिया कि पापा ने रखा वो? नहीं सर, वो सिस्टम में से है sir। अच्छा ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स इतना बड़ा नाम नहीं फिट होएगा, वसम शेट्टी, कार्तिक, सूर्य नारायण और हाँ, क्या है? इसके लिए सर कार्तिक ही यूज करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा को छोटा मत करो, यू दैट इज हाँ सर, नॉट। वो पता है। और मैं देखता हूँ तुम्हारा मम्मी पापा को तुम ब्लैकमेल बहुत करता है कार्तिक, सच बोलना। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच, सच बोलना सच। नहीं सर, उल्टा मैं छोटू, मतलब मैं बड़ा है ना, मेरा छोटा भाई है। ब्लैकमेल करते हो क्या तुम उनको, ये मेरा नहीं, प्रश्न है। बिल्कुल नहीं। अभी तुमने एक अपना एटीट्यूड बताया था, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मम्मी पापा का नाम छोटा करता हूँ। नहीं, मैंने नहीं बोला है सर, मैं नहीं तुमने करता बोला सर। किधर बैठा है? रोड में इतना आवाज आ रहा है भाई। सर वो रोड नहीं है सर, मम्मी काम कर रही है। क्या कर रही है मम्मी? वो काम, एक सेकंड सर। कोई बात एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो सर। नहीं। हाँ मम्मी काम सिलाई कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ सर। ठीक है। बैठो बैठो, तुम बैठ जाओ अभी। हाँ किधर सर, बैठ, बैठ रहा किधर घूम रहा है अभी? बालकनी में जा रहा है क्या? हूँ। नहीं सर, घर में ही हूँ। घर में ही है? हाँ हाँ। पढ़ाई कितना देर करते हो? सर एक्चुअली मेरे को नोटबुक से होता है सर, मतलब टेक्स्ट बुक ऐसा, ऑनलाइन मेरे को जमता नहीं। हाँ, पढ़ाई में जम नहीं रहा है तुमको, राइट। यस सर। असली में जब ऑफलाइन रहता है ना सर, क्या है, वो नोटबुक रहता है और रेफरेंस मटेरियल जो रहता है ना सर, तो हाँ लिखने जमता है, और टीचर से डायरेक्ट कन्वर्जेशन होता है करके मेरे को जमता है सर। हाँ, ये वाला मेथड नहीं जमता, ऑनलाइन वाला, राइट। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये मैं सुनने के लिए जाता हूँ सर, लेकिन क्या होता है मालूम है, जब हाँ, सुनता हूँ ना, फिर थोड़े टाइम के बाद वो इंटरेस्ट चले जाता है। ये बात तो सही है। इसलिए मैं कभी कभी बच्चों को ट्रैक चेंज करता हूँ, कभी इंट्रोडक्शन में ले आता हूँ, कभी सिंगिंग में चला जाता हूँ, बिकॉज आई नो कि कंटिन्यूअसली टीचिंग नहीं चलेगा, राइट। कभी यस उनसे सर। बात करता हूँ। सो आई शुड कीप ऑन चेंजिंग द सब्जेक्ट, तो थोड़ा उनको इंटरेस्ट रहना चाहिए। सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते रहोगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देयर दिस वन। ऑनलाइन में इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस सर। तो कार्तिक, एज यू सेड कि तुम्हारा फोकस नहीं रहता है स्टडी में, तो मतलब फोकस फिर किधर रहता है, वो टाइम कहाँ जा रहा है तुम्हारा? सर एक्चुअली वो मेरा कुछ दिमाग में दूसरा चलता रहता है सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग, जो इमेज से मैंने देख के बता दिया कि तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है। हाँ, यस सर। क्यों ऐसा कर रहे हो? मम्मी तुम्हारा इतना हार्ड वर्किंग है, तुमने अभी दिखाया कि सर देखो मेरा मम्मी सिलाई कर रहे हैं, राइट। यस सर। और उनका ड्रीम क्या है? व्हाट इज हर ड्रीम? सर एक्चुअली ड्रीम कुछ नहीं है सर, मतलब सेटल होने का अच्छे से। हाँ, वही सभी पेरेंट्स का बस वही ड्रीम रहता है। दे डोंट हैव अ बिग ड्रीम लाइक मेरा बच्चा कोई बड़ा पोस्ट में जाए। दे एवरी पेरेंट वांट देयर चाइल्ड टू जस्ट एक स्टार्टिंग ब्रेड एंड बटर हमारे बच्चे को मिलना चाहिए, राइट। अपने पैरों पे स्टैंड करना चाहिए, सभी पेरेंट्स का वही सिंपल ड्रीम होता है बस, राइट। यस सर। कि हमारा बच्चा अच्छे से अपना ब्रेड एंड बटर। तो अब जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर में ही आके चेंज कर दिया, अगर ये प्रॉब्लम को तुम अपना माइंड में रखेगा कि सर ऑनलाइन नहीं समझ रहा, समझता है लेकिन मैं कंसंट्रेट नहीं कर सर पाता हूँ, सर तो हाँ, सर वीडियो ऑन करूँ क्या? क्यों? सर डर लगता है। डर लगता है? क्यों डर लगता है? पता है किसको डर लगता है?
किसको डर लगता है पता है? सर एक्चुअली वो मेरा फियर असली में ये नहीं है हाँ, सर, नहीं 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 पब्लिक नहीं पब्लिक स्पीकिंग है मेरा, लेकिन नहीं असली में नहीं नहीं जब नहीं, डर कैमरा के नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डर कहाँ किसको लगता है पता है? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम गलत होंगे तो हमको डर लगेगा, टीसी के सामने हम हैं विदाउट टिकट तो डर लगेगा। सर हमारे नहीं वो एक्चुअली बचपन हमारे से हमारे सर। हमारे अंदर कंटेंट्स नहीं है तो टीचर को फेस करने में डर लगेगा, पता नहीं टीचर क्या पूछेगा। वैसा नहीं कंटेंट्स सर, वो बोलने में ठीक है सर, तो वो जो वीडियो जो रहता है ना या पिक्चर वो सब, वो हाँ एक्चुअली फियर है मेरा, किसी दूसरे में आने का ऐसा। ठीक है, पढ़ाई करो, बस इतना ही मुझे बोलना है, ठीक है? यस सर। अच्छे से पढ़ाई करो और 100% अपना दो पढ़ाई में, फ्यूचर बनाओ, ठीक सर है? ये रेफरेंस बुक कुछ है क्या सर, मतलब आपका सब्जेक्ट का सिर्फ? हमारे सब्जेक्ट में बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं, आप S1 कानेटकर के बुक ले लो, बाला गुरुस्वामी के ले लो। S1 काइनेटिक। यशवंत वाई, यशवंत ओके सर। यशवंत कानेटकर, बाला गुरुस्वामी ले लो, ओके सर। ठीक है? ओके। ठीक है, चलो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? यस सर। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। और किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर तो नहीं है ना स्टूडेंट्स? नो। एक सेकेंड, नाइन 30 हुआ है। एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि मैं वो प्रोग्राम ले नहीं पाऊंगा, मैं छोटा कुछ सोच रहा हूँ क्या करूं अभी आपके साथ में, स्मॉल में, छोटे में। तब तक तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं? यू हैव एनी डाउट्स? बिकॉज मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ सब बड़ा लेवल में जा रहा है सिलेबस में। यू हैव एनी डाउट्स? हेलो? The revision of matrices. वेरी गुड, रिवीजन ऑफ मैट्राइसेस। व्हाट यू वांटेड टू डू इन द मैट्राइसेस? ऐड वाला, सब्ट्रैक्ट वाला, क्या? Some multiplication. चलो हम लोग जो भी इसने बोला है हम न्यू प्रोग्राम लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट? Yes, sir. तो पहले उसको तो समझाना पड़ेगा अच्छे से। चलो मैं देखता हूं, मल्टीप्लिकेशन लाइक वट एवर एग्जाम्पल हैड टेकन लास्ट टाइम। अगर हमारे पास ये 2 × 3 का एक मैट्रिक्स है
और इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन के पहले ये दोनों इक्वल होना चाहिए. So this is the row, this is column, this is row, this is column. So the number of columns in the first matrix is equal to the number of row in the second matrix. If these two are values are equal, then only you can multiply. Number of column in the first matrix is equal to the number of row in the second matrix. Then only the multiplication is possible. That is a precondition. And then the output of the third matrix, the result is always this one, R cross C, that is 2 cross 2. ये हमारा आउटपुट होएगा. स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? हेलो, ये हमारा आउटपुट होता है. सो अगर हमने यहाँ पे नंबर लिए थे लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रखा था 6 5 4 3 2 1, और रिजल्ट वाज यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कहाँ से आने वाला है? वो जो नंबर आएगा इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 0 0, द नंबर विच इज, ये 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, ये 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, एंड दिस इज अगेन 0 कॉलम 1 कॉलम 0 रो 1 रो 2 रो. राइट स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? समझ रहे कि नहीं? तो ये जो मेरा है, तो ये जो 0 0, यहाँ पे जो 0 0 वैल्यू आएगा वो कैसे आ रहा है हमारा 0 0? लुक एट दिस, आप 1 into 6 करेंगे. पहले वहां पे भी नंबरिंग कर देता हूँ. ये मेरा 0 0 नंबर है, ये मेरा 0 1 है, ये 1 0, ये 1 1, ये 2 0, ये 2 1. तो ये जो 0 0 है, ये इसका 0 0, फर्स्ट मैट्रिक्स का 0 0 मल्टीप्लाई करो 1 into 6, राइट? फिर क्या करते हैं हम, ये 0 0, ये 0 1, 0 2, 1 0, 1 1, 1 2. फिर क्या करते हैं, 0 1 into 1 0 होना चाहिए. लुक एट दिस, प्लीज प्लस 2 into 4 करते हैं कि नहीं करते हैं? 1 into, लुक एट दिस, 1 into 6 प्लस 2 into 4 प्लस क्या करोगे, 3 into 2, but 3 is where 0 2 into 2 0, right? स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes. और ये जो आंसर है, दैट इज 6 प्लस 8 प्लस 6, ये आंसर कितना है, 20. तो ये 20 इधर आ जाता है. कहाँ पे? यहाँ पे 20 आ जाएगा. नेक्स्ट जो आंसर है ये वाला 0 1, ये 0 1 कहाँ से हम लेते हैं पता है? ये 0 1 कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है लाइफ में कि नहीं किया है? अगेन द सेम row will repeat, the column will change, right? Row will remain same, column will change. तो वो क्या होगा, 0 0, column will change into 0 1, that is 1 into 5 plus 0 1, that is ये वाला, और उधर रहेगा 1 1, तो that is 2 into 3 plus here it is 0 2, there it is 2 1, and that is nothing but 3 into 1. तो ये जो नंबर आया अब हमारा 14 आ गया. So this number is 14. I hope you are getting how we are getting 14. 0 1 यहाँ जो रहेगा रिजल्ट मैट्रिक्स में, मे बी C वाला, दिस इज C मैट्रिक्स, दिस इज A मैट्रिक्स, दिस इज B मैट्रिक्स. तो C का जो 0 1 है, C look at this how you are getting 0 1. Then ये जो नंबर है, दिस इज 1 0. ये जो 1 0 है C का, वो कहां से आएगा स्टूडेंट्स? नाउ यू हैव टू चेंज द रो. You have to change the row. Which row? First matrix का second row and second matrix का first column. So how will you multiply? It is now 1 0 into 0 0. That is 4 into 6 plus क्या करना है? Second row, first column. 1 1 into 1 1 into 1 0. तो ये कितना हो जाएगा? 5 into 4 plus 1 2 1 2 into 2 0, that is 6 into 2. What is this answer, students? How much? 4 into 6 is 24 plus 20 is 44, 44 plus 12 56. ये मेरा आंसर आएगा 56. अब बचा मेरा 1 1. अब ये 1 1 कहां से आएगा भाई?
अगेन सेम रो, दैट इज सेकेंड रो बट सेकेंड कॉलम नाउ. तो कैसे लिखेंगे अब हम इसको? 1 0 into 0 1, right? That is now you're talking about 4 into 5 plus 1 1 into 1 1, that is 5 into 3 plus 1 2 into 2 1, right? That is 6 into 1. What is your answer here? 20 plus 15, 35 plus 6, 41. So this number is going to be 41, right, student? Hello? Yes. आप यहाँ इतना करने के लिए यहाँ पे मुझे एक आई लगाना पड़ेगा. आई विल लुक इनटू द रो. जितने भी रोज हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, आई विल लुक इनटू दैट मेरे दोनों रो मल्टीप्लाई हो गए कि नहीं. इफ देयर आर 3 रो, आई विल टेक केयर ऑफ रोज. एंड यहाँ पे मुझे एक जे लगाना पड़ेगा. यहाँ पे ये जे विल लुक इनटू द कॉलम्स. दैट मीन्स इसका अगर सब रो खत्म हो रहा है तो उसके सब कॉलम भी खत्म होने चाहिए. दैट मीन्स व्हेन आई एम टेकिंग आई एज 0 इन दिस एग्जांपल, व्हेन आई इज 0, जे को कितना वैल्यू लेना पड़ेगा? मतलब एक रो को कितने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको? फर्स्ट रो को कितने कॉलम से मल्टीप्लाई किया आपने? 2. यस. तो जब आई 0 था तो जे 0 1 होना चाहिए, राइट? पहले 0, पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, राइट? Yes, sir. और जब आई 1 होगा, दैट इज यू आर इनटू द सेकंड रो, तो जे फिर क्या करना चाहिए? 0 1. फिर से 0 1 होना 0 चाहिए. 1. हाँ, जब ये 1 है तो 0 1, जब ये 1 है अगेन इट हैज टू बी 0 1, राइट? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, ये होना चाहिए. So what was I was looking after what row? J is looking after column, right? Yes or no? Yes. I is looking after the row of which matrix? First matrix. And J is looking after the column of which matrix? Second matrix. I first मैट्रिक्स का रो को केयर कर रहा है और J सेकेंड मैट्रिक्स को आई बोलता है भाई मैं इधर देख रहा हूं, आई सी इट वेदर बोथ द रोज और ऑल द रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड. जे बोलता है भाई मैं सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को देख रहा हूं, आई विल लुक इनटू दैट विथ एवरी रो ऑफ योर्स आई एम मल्टीप्लाइंग ऑल द कॉलम्स ऑफ माइन. दैट इज सेकेंड मैट्रिक्स का सभी कॉलम तुम्हारा हर एक रो के साथ मैं तुमको दे सकूं. तो बोलता है भाई ठीक है, दोनों भाई they are both are busy, I and J both are brothers, both are busy, but right now when I has to start, मतलब I जब भी फर्स्ट रो को ले रहा है तो I is helpless. J can you help me? J is saying sorry brother, I am busy in my B. I can't be able to tell you which column you have to pick up from first row. That means when I is 0, I is clueless कि जब मैं फर्स्ट रो तो है, but first row there are so many elements, which columns shall I pick up to multiply? I do not know. Same problem J is also facing कि J बोलता है सर जब मैं फर्स्ट कॉलम में हूं तो मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन सा रो पिकअप करना है. When I am into the, look at this, it is saying sir if I am into this column I do not know which row to pick up, and it is saying when I am into this row I do not know which column to pick up, right? Students, आप समझ रहे हो? Yes, sir. What in by I is 0? That means you are in 0 row. What in by J is 0? You are in 0 column. So 0 row. But how 0 row? You are in 0 row, but it has got 3 elements. Which element you are going to pick up from this? 1, 2 या 3? नहीं पता sir. And other one is saying sir 0 column. So when 0 column means what? 6, 4, 2. Which element you are going to multiply with that element of A? Sir नहीं पता है. So then both of them can't help each other, but they are having a one good friend of them. दोनों भाई का एक दूसरा दोस्त है, right? उसका नाम है K. ये दोनों वो भाई दोनों डिस्कस करते हैं क्या करें अभी. चलो बोलते हैं चलो हम K का हेल्प लेते हैं, कजिन ब्रदर है उनका. ये बोलता है सर आई हैव नॉट स्टडीड प्रोग्रामिंग. दे से डोंट वरी, जो हम बोलेंगे उतना सुनो बस, हम दोनों भाई को सब कुछ आता है. And whatever I'll tell you that you have to listen that. बोले ठीक है सर. तो K स्टार्ट करेगा 0 से, K भी स्टार्ट करेगा 0 से. तो जब A है मेरा मैट्रिक्स A, वहां पे I है और यहाँ पे इसने K का हेल्प लिया. K is going to tell I about the columns
and K is going to tell P, that is J को बताएगा, J को रो हेल्प करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए बताएगा. Look at this, I को कॉलम सिलेक्शन करा रहा है और J को रो सिलेक्शन करा रहा है. राइट स्टूडेंट्स? यस और नो? हेलो स्टूडेंट, अब आप देखो I0, J0, K0 तीनों जीरो है, तो जरा ये 0 0 इंटू ये 0 0, आर वी गेटिंग ये वाला लाइन हमको मिल रहा है क्या? ये वाला 1 इंटू 6 हो रहा है क्या? यस सर. इसके बाद कौन चेंज होगा? पहले आई चेंज होगा कि जे होगा या के होगा? इनर कौन होगा? इनसाइड लूप कौन होगा? के, राइट? तो के क्या हो जाएगा? 1, राइट? के क्या हो जाएगा? 1. जब के 1 होगा, जस्ट डू द चेंजेस हियर. तो के जब भी 1 हो गया तो ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 0. आर वी गेटिंग दिस? 0 1 1 0 ये मिल रहा है. Yes, sir. उसके बाद कौन चेंज होगा? आई जे या के? के, राइट? Okay. K will become 2. K will become 2. And this becomes 0 2. This becomes 2 0. Look at this. Are we getting this line 0 2 2 0? Yes, sir. So these elements will be multiplied and will be given to 0 0. यहाँ पे आ जाएगा सब आंसर, right? उसके बाद में now K is over, which will change. That means you have multiplied first row with the first column. First row with the first column. What will change now? अभी क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब क्या करना चाहिए? यस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ गए, जे हैज बिकम 1 नाउ, देन सेम प्रॉब्लम. दोनों भाई लोग को सेम प्रॉब्लम फिर से आ गया है. के बोलता है मैं जाऊं क्या? बोले चुपचाप बैठो, जब तक हमारा काम नहीं होगा यू कैन नॉट लीव अस. तो बोले ठीक है सर, क्या करना है? तो के को फिर वो 0 कर देते हैं, राइट स्टूडेंट्स? के फिर से क्या हो गया? 0 हो गया. जरा आप देखते हैं. Just keep in mind, you are in the first row, that is 0. K has become 0, so this is 0. K is 0, but J has become 1. Just check whether I'm getting this. हो रहा है क्या? That is 1 into 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? 1 into 5. Yes. उसके बाद क्या चेंज होगा? K चेंज होगा कि J चेंज होगा? K चेंज होगा, राइट? Okay. Yes. So now Yes. this becomes 1, this becomes 1, even this becomes 1. Just check whether I will be getting this. हो रहा है कि नहीं? 0 1 into 1 1, that means 2 into 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है. उसके बाद में फिर से कौन चेंज करेगा? K चेंज करेगा. K चेंज हो जाएगा. So this will remain 0, this become 2, this is 2 1. Just check whether we are getting this 0 2 2 1. ये हुआ हमारा? Yes, sir. हुआ. Done. Very good. So again the multiplication of this first row with the second column will be given back to 0 1. यहाँ पे हमारा 0 1 में आंसर आ जाएगा and I'll be getting the answer as 14. Now you have multiplied first row with the second column as well. What should change now? Tell me. मतलब मेरा एक रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होना चाहिए? I चेंज हो जाएगा. तो I कितना हो जाएगा? अब 1 हो जाएगा, राइट? आप क्या करना है? मेंटली दिमाग में लो आप, मुझे सेकेंड रो को वही करना है जो मैंने फर्स्ट रो को किया था. नाउ सेकेंड रो नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द कॉलम्स, राइट स्टूडेंट्स? तो अब क्या चेंज होगा? जब I 1 हो गया तो J क्या हो जाएगा? अब जब सेकेंड रो 0, कॉमन सेंस है यार. सेकेंड रो को अब मुझे फिर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा कॉलम J क्या होना चाहिए? J 0 हो जाना चाहिए, राइट? Yes. Now again both the brothers are helpless. They again need a help of K, because when you are into the second row, still you do not know which column to pick up, and again when J is in the first column, does not know which row to pick up. So again they are taking the help of K. K is becoming 0. So just try to understand what I'm writing right now. I is 1, K is 0. I is 1, J is 0. Just check. हमें 1 ये क्या है? K is 0. ये K is 0. So just check whether we are getting this. That is 4 into 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? Yes, sir. Yes.
यस, उसके बाद देखो कौन चेंज करेगा अभी नेक्स्ट? जे चेंज K. और के नहीं, के कौन चेंज होगा? K. क्योंकि अभी तो आपने केवल 4 into 6 किया है ना, अभी तो 5 into 4 भी करना है, राइट? हाँ तो अभी के चेंज होगा। अब के चेंज होगा तो जरा फोकस करो, के चेंज करो आप, के का वैल्यू चेंज करो आप। के मैंने चेंज किया तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0। लुक एट दिस, आर वी गेटिंग दिस? Yes. यस अभी क्या चेंज होगा बताइए सर? अब के ही चेंज होगा फिर से, बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज नॉट येट ओवर। तो के विल अगेन चेंज, के विल अगेन चेंज, जस्ट चेंज दिस के and then you go ahead with this and tell me whether we are getting the answer. This one 1 2 2 0 हो रहा है? यस So now you have finished multiplying second row with the first column. Second row with the first column is done now. What should change now? What is left out now? जे Yes, Second J will change. column. J will change. Yes, column will change. So I will go with the second column now. I am already in the second row. Now second column. So again both the brothers are helpless. They again make that k as 0. k को फिर से दोनों 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, k 0 हो जाएगा तो I is 1, k is 0, k is 0, j is 1. Just have a look, ये हमको मिल रहा है क्या? That is 4 into 5 हो रहा है, right? यस Again what will change? इसके बाद क्या चेंज होगा? k 1 हो जाएगा तो ये 1 1 होगा, ये भी 1 1 1 1 1 हो रहा है ये। यस Now what will change after this? K will become 2, this will become 2. Just have a look, ये हो रहा है हमारा। यस If this we have understood how my program is going to run, then C program बहुत easy हो जाता है। पहले आपको ये डिसेक्शन समझना चाहिए कि प्रोग्राम चलेगा कैसे। As a teacher, I should not write down the program directly. Okay, ये है हो गया। But then students are going to behind the program. I don't want my student to behind any of the program. They should understand the program, how the programs are being written, right? क्योंकि इन रियल लाइफ में जब आप इंडस्ट्री में आओगे, डेवलपमेंट करने के आओगे, तो यू कैन नॉट गो हेड विद द बाय हार्टेड प्रोग्राम एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोग्रामर, वेरी गुड प्रोग्रामर, वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नो, whatever topic is given to you should understand that topic, इसको हम लिखेंगे कैसे, करेंगे, you should understand the logic behind that problem and then you try to solve it, then you are a good programmer. You should never by heart any program, students. You should learn how to write simple programs, right? If you want to become a good software engineer. So students, since time is up today, I will write this program later. I have already explained to you. Explanation part is over. Writing part, I will write it once again for you all. Okay? Is that clear, students? Yes. Yes, sir. Yeah, I will write it. Whichever program, if you want me to repeat, I am ready to repeat. If I am doing my 100%, I want 100% from your side as well, right? Students, please ask me whatever doubts Yes. you are having. Yes, Please sir. ask me those doubts. I will answer all your doubts. Make a list of the programs one day. Sir, ये program जरा फिर से repeat करो. I am ready to repeat all those programs. So today is 2nd, 12/2021. Okay, students. चलो take care then. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू